friends, I welcome you once again for part 2 of our discussion and the knowledge series on Model GST law. As you might remember, part 1 was pertaining to overview of GST, and this part 2 will deal with the provisions regarding registration under the GST. Before proceeding further, first we need to understand what are the documents or which are those sections which are relevant for understanding about the registration under GST. So my dear friends, in July 2015 there was a report of the Joint Committee on business processes of GST for registration. It means that is document number 1 which we need to consider so as to understand the registration process under GST. Then on 14th of June 2016 the model GST law was in public domain. Under that model GST law, section 19 of the CGST and SGST Act, the provisions pertaining to registration are mentioned. So second thing which we need to refer is section 19 of the model GST law. Then for specific kind of persons, there is further provisions of registration under section 19A of the CGST SGST model GST law. If we proceed further, there are provisions pertaining to cancellation of registration, amendment of registration. All these are mentioned from section 19 to section 22 of the CGST and SGST Act. Before entering into the technicalities and discussing the exact process of registration, my dear friends, few of my friends have requested me to keep this session at least a mixture of Hindi and English. I hope you will not mind if I will use a language wherein I will be speaking both in English as well as in Hindi. इसलिए साहब सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन समझना है तो कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रेफर करने पड़ेंगे. उसमें पहला डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया, जो जुलाई 2015 में एक रिपोर्ट आई जॉइंट कमेटी की जिसमें बिजनेस प्रोसेस जीएसटी के मेंशन है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए वो रिपोर्ट थी, वो एक डॉक्यूमेंट हमको पढ़ना पड़ेगा. दूसरा सेक्शन 19 जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है मॉडल जीएसटी लॉ में, वो सेक्शन हमको पढ़ना पड़ेगा. इसके अलावा सेक्शन 19A, 20, 21, 22 ये सेक्शंस हमारे को कुछ स्पेसिफिक पर्सन के रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे कैजुअल डीलर, इसके अलावा अमेंडमेंट, सरेंडर, उनकी प्रोसेस समझने के लिए हमको ये सेक्शंस को रेफर करना पड़ेगा. एंड ओवर एंड अबव दैट देयर इज अगेन अ शेड्यूल which we will have to refer so as to understand the provisions of registration. And schedule is schedule 3 to the model GST law. Schedule 3 provides for the liability to be registered. All those persons who are liable to be registered are mentioned under schedule 3 of the model GST law. तो सर अब टेक्निकलिटीज की तरफ अपने आगे बढ़ते हैं. मैंने ये सब चीज़ें आपको इसलिए समझाने की कोशिश की कि ये डॉक्यूमेंट्स, मेरा जो ये सेशन रहेगा वो आधा घंटे का, 45 मिनट का या 1 घंटे का रहेगा. बट इफ़ वी वांट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस इन डिटेल देन दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच वी नीड टू रेफर. जैसे पहला डॉक्यूमेंट है सर जुलाई 2015 की रिपोर्ट. दूसरा डॉक्यूमेंट है मॉडल जीएसटी लॉ के एग्जैक्ट प्रोविजंस जो चैप्टर 6 में दिए गए हैं, जहां पे सेक्शन 19 से लेके सेक्शन 22 को कवर किया गया है, जो जीएसटी के प्रोविजंस बताते हैं. अगर शॉर्ट में मैं कवर करने की कोशिश करूं तो जनरल रजिस्ट्रेशन इज कवर्ड अंडर सेक्शन 19, द रजिस्ट्रेशन फॉर कैजुअल डीलर and a non-resident person
is covered under section 19A. Section 20 deals with the amendment in registration. Section 21 deals with cancellation of registration, and section 22 deals with the revocation of registration. So ये सर डॉक्यूमेंट था दूसरा मॉडल जीएसटी लॉ. उसमें चैप्टर 6 पढ़ना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन को समझने के लिए. सेक्शन 19 से सेक्शन 22 समझना पड़ेगा. और इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट है जो इसी मॉडल जीएसटी लॉ का पार्ट है, which is said to be schedule 3 of the model GST law, which specifies the persons who are liable to be registered. ऐसे कौन से लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जीएसटी के अंदर, वो शेड्यूल 3 में मेंशन्ड है. तो चलिए सर, लेट अस प्रोसीड and understand what is registration under GST all about. So I will change the order now, and first we will try to touch upon the section 19 under the model GST law. So section 19 12 subsections में बना गया है. It covers 12 subsections discussing the various provisions pertaining to general registration. Subsection 1 कहता है सर कि every person who is liable to be registered under schedule 3 of this act shall apply for registration. It means schedule 3 में जिस भी इंसान को रजिस्ट्रेशन कराना है उसके लिए कंपलसरी है कि वो 30 दिन के अंदर within 30 days he shall apply in every state where he wants to get registered. अब सर क्वेश्चन arises कि what does the term every state means. मैं वापस आता हूं उसी प्रोविजन पे. सबसेक्शन 1 सेक्शन 19 का प्रोवाइड करता है every person who is liable to be registered under schedule 3 of the model GST law shall apply for registration in every such state in which he is so liable within 30 days from the date on which he becomes liable for registration in such manner and subject to such conditions as may be prescribed. तो सर मैनर यानी आपको कैसे एप्लीकेशन करनी है और वो क्या कंडीशंस आपके ऊपर इम्पोज किए जाएंगे वो प्रिस्क्राइब्ड होगा सर. It is yet to be prescribed. Only thing at this point of time which we need to understand is most important is schedule 3. So all those who are referred under schedule 3 will have to get registration compulsorily within 30 days from the date on which they become liable for registration. This is part 1. And number 2 is they will have to get themselves registered in every state where they are liable to get registered. So again I am coming back to my question. What does every state means? सर आप याद करें अंडर सर्विस टैक्स देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन. अंडर वैट ईच स्टेट हैज इट्स ओन वैट एक्ट एंड अ पर्सन who is working in more than one state has to get registration in every state where he is working. Similarly under GST also, if a person is supplying from various states, he will have to get himself registered in each state. There is no concept of centralized registration under GST. So sir, I believe now you are clear. कोई भी लोग, any person who is referred or who is made liable to get himself registered under schedule 3 of this act shall apply for registration within 30 days, and he will have to make an application in every state where he is so liable. That means where he is liable to get himself registered. अब सर इसमें एक प्रोवाइजो दिया गया है सबसेक्शन 1 में, जो प्रोवाइजो ऐसा बोलता है कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा, अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अगर कोई भी जो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेंट हैं हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर द एग्जिस्टिंग प्रिवेलिंग लॉज
whether it is VAT law, excise law, or service tax law, they are not supposed to make application for registration, or rather I would say they are not supposed to make fresh application for registration. Now why they are saying so, we'll be discussing later while discussing further, but just at this point of time we need to understand कि जो लोग भी अभी रजिस्ट्रेशन रखते हैं, चाहे वो वैट का रखते हो, एक्साइज का रखते हो, सर्विस टैक्स का रखते हो, उनको जीएसटी आने के बाद फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, और जो प्रोसीजर उनके लिए प्रिस्क्राइब किया जाएगा केवल उनको वो प्रोसीजर फॉलो करना है. ये सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19 का फर्स्ट प्रोवाइजो प्रोवाइड करता है. सो आई विल सम अप नाउ सबसेक्शन 1. सबसेक्शन 1 में 3 चीजें सर ध्यान रखनी है. पहली चीज, जो लोग भी शेड्यूल 3 में कवर्ड हैं और लाइबल है रजिस्ट्रेशन लेने के, उनको लाइबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी, एंड विद इन 30 डेज, जिस दिन से वो लाइबल हुए हैं उसके 30 दिन के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. नंबर 1. नंबर 2, कि जिस जिस स्टेट से वो सप्लाई करते हैं हर उस स्टेट में उनको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है और क्या कंडीशंस हैं वो प्रिस्क्राइब की जाएंगी. तो सर ये 2 पार्ट्स हो गए. और तीसरा चीज इसमें ये ध्यान रखना है कि जो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेंट्स हैं, जिनके पास एग्जिस्टिंग नंबर्स हैं, चाहे वो वैट के हो, जीएसटी के हो, वैट के हो, सर्विस टैक्स के हो या एक्साइज के हो, उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन जीएसटी में नहीं करना पड़ेगा. उनको क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करनी है वो भी प्रिस्क्राइब की जाएंगी. तो आई बिलीव नाउ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19 इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. नाउ लेट अस मूव फर्दर कि इवन इफ अ पर्सन is working in only one state but he has multiple business verticals, then for each business vertical he will be allowed to get a separate registration. Why I am saying so? Because the word used in the subsection 2 of section 19 is may. So a person having multiple business verticals in a state may obtain a separate registration for each business vertical subject to such conditions as may be prescribed. तो अगर आपके मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स हैं एक ही स्टेट में, तो आपको हर बिजनेस वर्टिकल के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है, और उसकी जो कंडीशंस रहेंगी या टर्म्स रहेंगी वो प्रिस्क्राइब की जाएंगी. नाउ सबसेक्शन 3. Subsection 3 provides, even if a person who is not covered under Schedule 3, that is a person liable to get himself registered, he can make an application on voluntary basis and get the registration voluntarily. Subsection 3 of Section 19, कि अगर मुझे Schedule 3 में कवर नहीं किया गया है और मैं चाहता हूं कि मैं GST एक्ट में रजिस्ट्रेशन लूं, तो मैं एप्लीकेशन कर सकता हूं और वॉलंटरीली मुझे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा. और एक बार मुझे रजिस्ट्रेशन मिल जाए तो जीएसटी एक्ट के सारे प्रोविजंस जो दूसरे लोगों के ऊपर एप्लीकेबल हैं वो मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएंगे. सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 19, it provides regarding the PAN number, that if we want to get ourselves registered under the GST Act, then PAN number is mandatory. अगर हमारे पास पैन नंबर नहीं है तो हमको पहले पैन नंबर लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हम जीएसटी नंबर ले सकते हैं. एक सब सेक्शन है 4A. 4A ऑफ सेक्शन 19 प्रोवाइड्स अबाउट अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन. सर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या है वो अभी अपन डेफिनेशन देखते हैं जो सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी एक्ट में मेंशन्ड है. लेकिन पहले प्रोविजन समझ लेते हैं कि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए पैन नंबर की छूट दी जा सकती है. उसके लिए कोई दूसरा डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब किया जा सकता है जिसके बेसिस पे उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा. आई एम रिपीटिंग, इफ अ पर्सन इज अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन,
then he may be granted registration even if he is not having a PAN number on the basis of some other document as may be prescribed. This is provided under subsection 4A of section 19. सर एक बार रिवाइज कर लें. अगर सब सेक्शन 1 में हमने देखा कि हर बंदा जो शेड्यूल 3 में कवर्ड है उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा 30 दिन के अंदर. वो जितनी भी स्टेट से सप्लाई करता है उसको हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. और अगर जो एग्जिस्टिंग लोग हैं जिनके पास एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन हैं तो सर उनको फ्रेश एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है. उनके लिए प्रोसीजर अलग से प्रिस्क्राइब किए जाएंगे. ये सब सेक्शन 1 था. सब सेक्शन 2 बोलता था कि अगर मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी पर्सन के, देन फॉर ईच सेपरेट बिजनेस वर्टिकल ही विल हैव टू मेक एन एप्लीकेशन सेपरेटली in a state. It means if in a state of Gujarat I am having 20 verticals, then for each of the 20 verticals I need to take a separate registration in the state of Gujarat. सर वो और इसकी क्लैरिटी आएगी जब हम बिजनेस प्रोसेस डिस्कस करेंगे और कैसे जीएसटी नंबर जनरेट होगा वो समझेंगे. देन वी विल गेट मोर क्लियरिटी अबाउट हाउ बिजनेस वर्टिकल्स नंबर्स विल बी अलॉटेड टू अस. सब सेक्शन 3 था सर, जहाँ पे शेड्यूल 3 में आप प्रिस्क्राइब नहीं है लेकिन वॉलंटरीली आप एप्लीकेशन कर सकते हैं और आपको ग्रांट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन और उसके बाद सारे प्रोविजंस इस एक्ट के आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे. सब सेक्शन 4 था जहाँ पे पैन नंबर होना कंपलसरी है. पैन नंबर के बिना आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते. उसका एक एक्सेप्शन दिया गया है सब सेक्शन 4A में, जो ऐसा प्रोवाइड करता है कि अगर आप नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो अगर आपके पास पैन नंबर नहीं भी रहेगा तो भी आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा किसी भी प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट के बेसिस पे. So now my dear friends, after discussing subsection 4A pertaining to non-resident taxable person, let us understand the meaning of non-resident taxable person, which is defined under clause 69 of section 2 of the model GST law, that is SGST and CGST Act. Clause 69 of section 2 of CGST SGST Act. Let me read that. The provision says, non-resident taxable person means a taxable person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods and or services, whether as principal or agent or in any other capacity, but who has no fixed place of business in India. तो सर ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कोई भी टैक्सेबल पर्सन जो ओकेजनली कोई सप्लाईज अंडरटेक करता है इंडिया में और जिसका कोई फिक्स्ड परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, वो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में आएगा. यानी एनी पर्सन who is not having a fixed place of business in India and who undertakes the transaction of supplies on occasional basis, whether as an agent or as a principal or in any other capacity, he will be treated as a non-resident taxable person. Now there is again a definition of fixed establishment also, which is provided under the model GST law, but this is not the right time to touch upon that. So in short we need to understand कि subsection 4A में जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन की बात की है कि जिनके लिए कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा और उसके बेसिस पे उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, वो नॉन रेसिडेंट पर्सन वो लोग हैं जो कभी कभी टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, टैक्सेबल सप्लाईज प्रोवाइड करते हैं एंड जिनका इंडिया में कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है. सो नाउ लेट अस मूव फर्दर, which is subsection 5 of section 19 of the CGST SGST Act under the model GST law. सर सबसेक्शन 5 प्रोवाइड करता है कि जो लोग भी जिनको रजिस्ट्रेशन कराना था या जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में कवर्ड होते हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो इस लॉ के अंदर उनके ऊपर जो भी कार्रवाई की जा सकती है, चाहे वो इंटरेस्ट पेनल्टीज का हो या और कोई कार्रवाई हो, वो तो होगा ही. इसके अलावा जो प्रॉपर ऑफिसर है वो उस असेसी को खुद रजिस्टर कर सकता है.
according to the procedure laid down under the rules and regulations. So let me touch upon once again for more clarity. Suppose I am covered under Schedule 3. जैसे मैंने पहले बताया Schedule 3 में वो लोग कवर्ड है जिनको रजिस्ट्रेशन लेना है, तो इसका मतलब मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है. अभी Schedule 3 में मैं कवर्ड हूँ और मैं रजिस्ट्रेशन लेने में फेल हो जाता हूँ, 30 दिन में रजिस्ट्रेशन नहीं लेता हूँ, तो वो सिचुएशन में जो भी प्रॉपर ऑफिसर होगा उसको ये पावर दिया गया है जीएसटी एक्ट में कि वो डायरेक्टली मुझे रजिस्टर कर सकता है. बट वो किस मैनर में मुझे रजिस्टर करेगा या क्या प्रोसीजर उसको फॉलो करना पड़ेगा वो भी प्रिस्क्राइब होना बाकी है. सो द मैनर इन विच ही विल बी इंटाइटल्ड टू मेक मी रजिस्टर्ड इज येट टू बी प्रिस्क्राइब्ड. बट यस, इट इज श्योर कि दैट प्रॉपर ऑफिसर may force me or proceed to get me registered under this particular act. लेकिन सर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नॉन रजिस्ट्रेशन के जो कंसिक्वेंसेस थे वो मुझे फेस नहीं करने पड़ेंगे. I mean to say, if we are not getting registered when we are required to get registered, then there might be some penalties being levied. जैसे कि सर्विस टैक्स में आज एग्जिस्टेंट है कि अगर रजिस्ट्रेशन मुझे लेना है और मैं रजिस्ट्रेशन नहीं लेता तो मेरे ऊपर 10,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है. तो सिमिलरली अगर जीएसटी लॉ में भी अगर कोई पेनल्टी प्रेस्क्राइब रहेगी तो वो पेनल्टी तो मुझे लगेगी ही लगेगी. लेकिन इसके अलावा प्रॉपर ऑफिसर को ये पावर दिया गया है कि वो मुझे डायरेक्टली रजिस्टर कर सकता है, इवन इफ आई फेल टू गेट माई सेल्फ रजिस्टर्ड. अब सर सब सेक्शन 6 में एक नया कंसेप्ट है, वो है यूनिक आइडेंटिटी नंबर का. कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी हो यूएनओ की यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, या किसी मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो नोटिफाइड हो यूनाइटेड नेशन प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947 में, या कोई कंसुलेट हो या एम्बेसी हो फॉरेन कंट्रीज का, या फिर कोई और बंदे जो नोटिफाइड हो जाए बोर्ड या कमिश्नर के द्वारा, तो उनको एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर लेना पड़ेगा इन द मैनर दैट मे बी प्रिस्क्राइब्ड. And why they are supposed to take those registrations? For the purpose which will be notified, including the refund of taxes on the notified supplies of goods and services received by them. What I mean to say is subsection 6 provides for the specialized agencies of UNO or any multilateral financial institution or organization notified under the United Nations Privileges and Immunity Act 1947, या कंसुलेट्स या एम्बेसीज फॉरेन कंट्रीज की, या और ऐसे बंदे जिसको बोर्ड या कमिश्नर प्रिस्क्राइब करते हैं नोटिफिकेशन के जरिए, ये सभी बंदों को all these are supposed to get themselves registered and their registration shall be a unique identity number which will be provided to them, and that unique identity number will be for the purposes which will be notified under the notification issued during the course of implementation of GST. That notification will provide the purpose for which unique identity number is to be used and the refund of taxes which they are entitled to take on the services or supplies received by them. This is subsection 6. Subsection 7 of section 19. Subsection 7 provide करता है सर कि registration या unique identity number it shall be granted or it may be rejected after due verification in the manner and within such period as may be prescribed. सर ध्यान दीजिए प्लीज, ये सेक्शन 19 का सब सेक्शन 7 है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है बिकॉज जो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा वो ये सब सेक्शन में होगा सर. सब सेक्शन 7 प्रोवाइड्स registration or unique identity number shall be either granted
or may be rejected, but after due verification in the manner as may be prescribed, and such rejection or registration shall be granted within a specified time limit which is specified and prescribed under the statute. तो सपोज जैसे अगर आज सर्विस टैक्स की बात करें, सर्विस टैक्स के अंदर देयर इज अ टाइम लिमिट ऑफ 2 days. आई सपोज आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन किया, उसके 2 दिन के अंदर अगर आपको रिजेक्शन या कोई कम्युनिकेशन नहीं आता डिपार्टमेंट का, तो इट इज प्रिज्यूम दैट इट हैज बीन एक्सेप्टेड एंड द रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड. इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ दिन फाइनल हो जाएंगे कि साहब 2 दिन आपने एप्लीकेशन किया जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो 2 दिन के अंदर आपके पास कम्युनिकेशन नहीं आता, तो इट विल बी प्रिज्यूम दैट योर रजिस्ट्रेशन इज अप्रूव्ड. और वो 2 दिन के अंदर अगर आपका कम्युनिकेशन आ जाता है एंड इफ देयर इज सम क्वेरी रेज, देन यू नीड टू मेक फर्दर सॉल्यूशन और यू नीड टू रिजॉल्व दोस क्वेरीज. तो यही प्रोसेस सर जीएसटी में भी रहेगा कि आपको एक फिक्स टाइम लिमिट के अंदर ऑफिसर को आपका रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन या तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा. और रिजेक्ट या एक्सेप्ट वो तभी करेगा जब वो प्रॉपरली उसको वेरीफाई कर लेगा एप्लीकेशन को, अदरवाइज वो नहीं करेगा. Now subsection 8, again it is very important. It provides that the proper officer shall not reject any application for registration or the unique identity number without giving a show cause and without giving the person a reasonable opportunity of being heard. यहाँ पे नेचुरल जस्टिस की बात की गई है सर. जैसा सबसेक्शन 7 में था कि विद इन अ प्रॉपर टाइम लिमिट एंड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड ही विल हैव टू वेरीफाई द एप्लीकेशन एंड देन एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट. So now before rejecting, what he will have to do is mentioned under subsection 8. Subsection 8 provides that if he wants to reject your application for registration or unique identity number, he will have to issue a show cause notice to you. And then thereafter, once you had the opportunity of personal hearing, it is only thereafter he can reject the application. मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो कंपलसरी देना पड़ेगा. शोकॉज देने के बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, उसके बाद ही वो रिजेक्ट कर सकता है सर. उसके पहले वो आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता आपकी एप्लीकेशन को. तो ये बहुत एक अच्छा प्रोविजन है सबसेक्शन 8 में. शोकॉज नोटिस उसको इशू करना पड़ेगा रिजेक्ट करने से पहले और आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा. नाउ सबसेक्शन 8A, इट प्रोवाइड्स द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी इशूड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड विद द इफेक्टिव डेट. तो जब वो सर्टिफिकेट इशू करेंगे सर, आज भी वैसा ही है कि कौन से दिन पे आपने एप्लीकेशन किया, वो दिन से या किसी और दिन से, दैट वी नीड टू लुक इनटू बिकॉज इट इज येट टू बी प्रिस्क्राइब्ड. बट इफेक्टिव डेट वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा. ये सबसेक्शन 8A प्रोवाइड करता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का. तो चलें सर आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 9 की तरफ. सबसेक्शन 9 प्रोवाइड करता है कि रजिस्ट्रेशन और यूनिक आइडेंटिटी नंबर इट शैल बी डीम्ड टू बी ग्रांटेड वंस द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सबसेक्शन 7, जो हमने पहले देखा ना सर सबसेक्शन 7 में कि भाई इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड एंड विद इन द टाइम लिमिट द रजिस्ट्रेशन शुड बी ग्रांटेड और इट शैल बी रिजेक्टेड. तो वो टाइम लिमिट खत्म हो जाए तब तक अगर कोई कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का नहीं है कि कोई डेफिशिएंसी है आपके इसमें या हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, अगर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है तो इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड. ठीक है साहब. अब सबसेक्शन 10. सबसेक्शन 10 क्या बोलता है कि कोई भी रिजेक्शन अगर एप्लीकेशन का किया जो रजिस्ट्रेशन के लिए है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर के लिए है, सीजीएसटी एक्ट में अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया या रिजेक्ट हो गया तो बाय डिफॉल्ट एसजीएसटी एक्ट में भी वो रिजेक्टेड माना जाएगा. और अगर एसजीएसटी एक्ट में रिजेक्ट हो गया तो सीजीएसटी में माना जाएगा, यानी वाइस वर्सा. इफ इट इज रिजेक्टेड अंडर सीजीएसटी इट विल बी कंसिडर्ड दैट इट इज आल्सो रिजेक्टेड अंडर एसजीएसटी, एंड इफ इट इज रिजेक्टेड अंडर एसजीएसटी इट विल बी कंसिडर्ड दैट इट इज रिजेक्टेड अंडर सीजीएसटी. और आगे बढ़ते हैं सर सबसेक्शन 11 की तरफ. अब हम खत्म हो रहा है ये सब सेक्शन. तो सेक्शन 11 ऐसा बोलता है कि अगर एक एक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि दूसरे एक्ट में भी आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया.
The grant of registration or unique identity number under the CGST or SGST Act shall be deemed to be a grant of registration or the unique identity number under the SGST CGST Act, provided the application for registration or the unique identity number has not been rejected under CGST or SGST Act within the time specified under subsection 7. यानी अगर सबसेक्शन 7 में के टाइम लिमिट के अंदर अगर आपका रिजेक्ट नहीं हुआ और CGST एक्ट में अप्रूव कर दिया आपका नंबर, तो SGST में ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। ये सबसेक्शन 11 प्रोवाइड करता है। और सर जैसे कॉमन प्रोविजन होते हैं लास्ट में, सबसेक्शन 2 वैसा ही कुछ प्रोवाइड करता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि अगर काउंसिल, GST काउंसिल उनको रिकमेंड करता है तो वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कुछ कैटेगरी ऑफ पर्संस को who may be exempted from obtaining registration under the act. So in short, subsection 12 provides that the central government or the state government may, on the recommendation of the council, specify such category of persons who may be exempted to take registration under this act. So sir, we have covered section 19, which relates to registration under the model GST law, which runs into 12 subsections. And now, before proceeding towards section 19A, which discusses about the provisions relating to casual taxable person and the non-resident taxable person, let us touch upon all these 12 subsections once again for our memory. तो सर रिकॉल करें, सबसेक्शन 1 क्या था? 3 चीजें थी। पहला, हर बंदा जो शेड्यूल 3 में कवर्ड है उसको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी 30 दिन के अंदर। दूसरा था कि अगर वो मल्टीपल स्टेट्स में काम करता है तो मल्टीपल स्टेट्स में उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। और तीसरा था कि अगर वो एग्जिस्टिंग लॉज में रजिस्टर्ड है तो उसको फ्रेश एप्लीकेशन नहीं करना पड़ेगा। उसका प्रोसीजर अभी प्रेस्क्राइब नहीं है, वो प्रेस्क्राइब होगा कि उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। ये था सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 था कि अगर एक बंदे के एक स्टेट में अगर मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स हैं तो उसको हर बिजनेस वर्टिकल का सेम स्टेट में सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसके बाद सबसेक्शन 3 था जो ऐसा बोलता था कि अगर शेड्यूल 3 में कोई बंदा प्रेस्क्राइब नहीं है बट फिर भी वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन मिलेगा उसको और उसके ऊपर ये एक्ट के सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। सबसेक्शन 4 प्रोवाइड करता था कि पैन नंबर, अगर आपको रजिस्ट्रेशन GST एक्ट में लेना है तो पैन नंबर आपके पास होना कंपलसरी है। सबसेक्शन 4A प्रोवाइड करता था कि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के केस में एक एडिशनल डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब किया जा सकता है फॉर ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन, और वहां पे पैन नंबर को छूट दी जा सकती है कि अगर उसके पास पैन नंबर नहीं है तो भी वो रजिस्ट्रेशन उसको मिलेगा। और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्लॉज 69 ऑफ सेक्शन 2 में डिफाइंड है, जो ऐसा बोला गया कि जो ओकेजनली सप्लाईज अंडरटेक करता है, चाहे वो एज अ प्रिंसिपल, चाहे वो एज ए एजेंट, चाहे किसी भी कैपेसिटी में करता है, और जिसका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, वो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में आएगा। सबसेक्शन 5 वो प्रोवाइड करता है कि अगर मुझे एप्लीकेशन करना था या रजिस्ट्रेशन लेना था शेड्यूल 3 में और मैंने वो एप्लीकेशन नहीं किया या रजिस्ट्रेशन लेना मैं भूल गया, तो जो प्रॉपर ऑफिसर है उसको पावर दिया गया है कि जिस मैनर में प्रिस्क्राइब किया जाएगा, जो मैनर, उस मैनर में वो मुझे रजिस्ट्रेशन दे सकता है। और इसके अलावा अगर एक्ट में कोई दूसरे प्रोविजंस हो पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन के, तो वो मेरे ऊपर लिवेबल होगा। सबसेक्शन 6 प्रोवाइड करता था स्पेशलाइज्ड एजेंसी के बारे में या काउंसलेट के बारे में या एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज के बारे में, कि उनके लिए उनको एप्लीकेशन जो करना है वो यूनिक आइडेंटिटी नंबर के लिए करना है, और वो यूनिक आइडेंटिटी कुछ पर्पसेस के लिए रहेगा जो पर्पस नोटिफाई होंगे, प्लस रिफंड ऑफ टैक्सेस भी उन्हीं पर्पसेस का एक पार्ट होगा जिसके लिए उनको यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिए जाएंगे। सबसेक्शन 7 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, कि रजिस्ट्रेशन या यूनिक आइडेंटिटी नंबर आपको दिए जाएंगे या रिजेक्ट किए जाएंगे आपके एप्लीकेशन इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड एंड विद इन द टाइम लिमिट विच इज टू बी प्रिस्क्राइब्ड। सबसेक्शन 8 कि कोई भी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का अगर आपने किया तो वो रिजेक्ट प्रॉपर ऑफिसर नहीं कर सकता अनलेस कि वो आपको शोकॉज नोटिस दे और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे। सबसेक्शन 8A
अगेन इंपॉर्टेंट, जो आपको सर सर्टिफिकेट मिलेगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का, वो सब सेक्शन 8A ऑफ सेक्शन 19 में मिलेगा. सर्टिफिकेट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, it will be given to you and it will be effective from the date which is known to be the effective date, and it will be mentioned on the registration certificate. सबसेक्शन 9 ये ऐसा प्रोवाइड करता था कि अगर सबसेक्शन 7 में जो टाइम लिमिट है वो अगर एक्सपायर हो जाए तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा या इट विल बी डीम्ड दैट यू हैव बीन ग्रांटेड द रजिस्ट्रेशन और यूनिक आइडेंटिटी नंबर. सबसेक्शन 10 ये प्रोवाइड करता था कि अगर आपका एक एक्ट में एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो दूसरी एक्ट में ऑटोमेटिकली रिजेक्ट गिना जाएगा. सबसेक्शन 11 अगेन, अगर आपका एक एक्ट में एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया तो दूसरी एक्ट में ऑटोमेटिकली वो एक्सेप्ट गिना जाएगा. फॉर एग्जांपल एसजीएसटी एक्ट में आपका अप्रूव हो गया एप्लीकेशन तो सीजीएसटी में ऑटोमेटिकली अप्रूव माना जाएगा. और सबसेक्शन 12 कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू स्पेसिफाई सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन्स who may be exempted from taking registration under this act on the recommendation made by the GST Council. So my dear friends, this was all about registration under section 19 of the model GST law. तो सब सेक्शन 19A में दो लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रिस्क्राइब किया गया है प्रोविजंस. पहला है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, दूसरा है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन. We have already discussed the definition provided under clause 69 of section 2, which pertains to non-resident taxable person. Now let us understand what is casual taxable person under the GST law. Clause 21 of section 2 provides about the casual taxable person. और सर शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो कि उसका मीनिंग यही है, a person who occasionally undertakes an activity of supply or a transaction of supply in the course or furtherance of business, whether as a agent or as a principal or in any other capacity in the taxable territory where he has no fixed place of business. तो सर दोनों में ये डिफरेंस है कि वहां पे उसका इंडिया में नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के केस में उसका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स नहीं है. यहाँ पे ये है कि जिस टैक्सेबल टेरिटरी, सपोज महाराष्ट्र में उसका रजिस्ट्रेशन है, उसको गुजरात में आके काम करना है तो गुजरात में उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो गुजरात के लिए वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा. अब सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19A क्या प्रोवाइड करता है? वो ये प्रोवाइड करता है कि आपने अगर एप्लीकेशन किया है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा एंड इट विल बी इफेक्टिव ओनली फॉर द पीरियड ऑफ 90 days. आई एम रिपीटिंग, फॉर अ पीरियड ऑफ 90 days ओनली. 90 दिन के पीरियड के लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू किया जाएगा एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एज अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड 90 days will be from the effective date of registration. फर्दर पावर्स दिए गए हैं प्रॉपर ऑफिसर को कि वो ये 90 days को एक्सटेंड करके फर्दर 90 days तक एक्सटेंशन दे सकता है. इट मीन्स टोटल 180 days. In the first lot 90 days and then it may be further extended to a maximum period of 90 days. सबसेक्शन 2 प्रोवाइड करता है कि कैजुअल डीलर या नॉन रेसिडेंट डीलर अगर आप उसकी तौर पे रजिस्टर हो रहे हो तो जो भी आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है वो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आपको एडवांस में डिपॉजिट करनी पड़ेगी. सपोज यू हैव अप्लाइड फॉर अ रजिस्ट्रेशन ऑफ 45 days, देन 45 days के अंदर की आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो आपको एडवांस में डिपॉजिट करनी पड़ेगी. एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन यू विल हैव टू डू दैट. और अगर आपने एक्सटेंशन सीख किया, 90 days एक्सपायर हो गए, फर्दर 90 days या फर्दर 40 days के लिए आप एक्सटेंशन कर रहे हो तो वो 40 days एक्सटेंडेड जो है उसके लिए जो लायबिलिटी है वो आपको अगेन ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सच एक्सटेंशन यू विल हैव टू मेक द डिपॉजिट इन एडवांस. और सर सबसेक्शन 3 ये प्रोवाइड करता है कि ये जो भी आप एडवांस डिपॉजिट कर रहे हो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट करेगा. और सेक्शन 35 जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड है, उस सेक्शन के प्रोविजंस के हिसाब से आप ये एडवांस डिपॉजिट को यूज कर सकते हो. तो 3 सबसेक्शन है सेक्शन 19A में. पहला सबसेक्शन बोलता है कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा लेकिन वो 90 days के लिए मिलेगा और जो फर्दर 90 days के लिए एक्सटेंड हो सकता है. सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर आपने एप्लीकेशन किया है और आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन यू विल हैव टू एस्टिमेट योर टैक्स लायबिलिटी फॉर द पीरियड फॉर विच यू हैव एक्सेप्टेड और फॉर विच यू हैव अप्लाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड
such tax liability has to be deposited in advance on the date of submission of the application. और एक्सटेंडेड पीरियड है तो एक्सटेंडेड पीरियड का भी टैक्स लाइबिलिटी आपको एडवांस में कैलकुलेट करके जमा करना पड़ेगा। और ये जो भी पैसा आपने जमा किया है वो सब सेक्शन 3 के हिसाब से जो सेक्शन 35 के प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे और आप अपने पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में उसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी एडवांस आपने डिपॉजिट किया होगा अंडर दिस सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 19A वो सारा आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट करेगा। तो साहब दिस वाज द प्रोविजन pertaining to registration of casual taxable person and non-resident taxable person. So my dear friends, up till now we have touched upon on sections 19 and section 19A, which was related to registration and registration of casual taxable person and non-resident taxable person. Now let us move towards section 20, which deals with the amendment in registration. Now if there is any change which has to be made in the certificate of registration, then the application has to be made to the proper officer in the prescribed manner and according to the procedure laid down. जो आप अभी भी करते हैं, अभी भी आपको सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन अमेंड कराना पड़ता है तो आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, और उसके बाद जो प्रॉपर ऑफिसर है वो कंसिडर करता है, ही गोज थ्रू योर एप्लीकेशन ऑफ अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन and once he get himself satisfied then he approves the application of amendment. यही प्रोसेस इसमें भी है जो सब सेक्शन 2 में प्रोवाइड किया गया कि जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन या अमेंडेड इन्फॉर्मेशन सप्लाई करते हैं या सबमिट करते हैं एप्लीकेशन के लिए या अमेंडमेंट के लिए, तो प्रॉपर ऑफिसर जो है उसको वेरीफाई करता है और अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है देन ही अप्रूव्स द एप्लीकेशन ऑफ अमेंडमेंट एंड it is made applicable and the new registration certificate is issued to you. लेकिन इसमें एक प्रोवाइजो भी है which provides that there may be certain particulars which may be amended even without the requirement of approval by the proper officer. यानी कुछ ऐसी चीजें प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं, कुछ पर्टिकुलर्स ऐसे हैं जो प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं जहां पे आप जब मर्जी चाहे आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। सबसेक्शन 3 प्रोवाइड करता है कि कोई भी प्रॉपर ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन ऑफ अमेंडमेंट रिजेक्ट नहीं कर सकता अनलेस एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज गिवन टू यू बाय वे ऑफ अ शो कॉज नोटिस। एंड सबसेक्शन 4 प्रोवाइड करता है कि कोई भी रिजेक्शन अगर एक एक्ट में हो गया, यानी CGST एक्ट में हो गया, तो SGST में बाय डिफॉल्ट माना जाएगा कि रिजेक्ट हो गया, और एक अगर SGST एक्ट में हो गया तो CGST में बाय डिफॉल्ट माना जाएगा। ये 4 सबसेक्शन है सर। पहला सबसेक्शन, आप अमेंडमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन करेंगे कि रजिस्ट्रेशन में आपको अमेंडमेंट करानी है। सबसेक्शन 2, प्रॉपर ऑफिसर जो है उसको प्रॉपरली वेरीफाई करेगा और अगर सेटिस्फाइड है तो अप्रूव करेगा, सेटिस्फाइड नहीं है तो रिजेक्ट करेगा। उसमें एक प्रोवाइजो है जो ऐसा प्रोवाइड करता है कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर्स हैं जो प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं जहां पे आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है अमेंडमेंट के लिए। सबसेक्शन 3 बोलता है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है और उसको एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट रिजेक्ट करनी है, then he will have to issue a show cause notice or provide an opportunity of being heard. सबसेक्शन 4 बोलता है कि अगर एक एक्ट में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो दूसरी एक्ट में बाय डिफॉल्ट इट विल बी कंसीडर्ड एज अ रिजेक्टेड एप्लीकेशन। सो दिस वाज सेक्शन 20 which was relating to the amendment of registration. Now I will take you through to section 21 which relates to cancellation of registration. It is very important to know this section, but यहाँ पे भी सर ध्यान यही रखना है कि cancellation can be in both the ways. You can make an application for cancellation of registration. At the same time, the proper officer can on his own motion he can cancel your registration. Now अभी ऐसे कौन से circumstances हैं जहाँ पे वो खुद कैंसिल कर सकता है, जैसे डेथ, बंदे की अगर डेथ हो जाती है तो कैंसिल कर सकता है, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया तो कैंसिल कर सकता है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस जो है प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप में आ गया तो पैन नंबर चेंज हो गया, देन इट विल बी डिसकंटिन्यूड। फिर शेड्यूल 3 में आप लाइबल हो रजिस्टर होने के लिए, अभी आप लाइबल नहीं रहते हो तो ऑटोमेटिकली आप कैंसिलेशन के लिए जा सकते हो, आपका योर लाइबिलिटी विल गो ऑफ। इसी तरीके से सबसेक्शन 2 ऐसा प्रोवाइड करता है, द प्रॉपर ऑफिसर मे इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम सच डेट including any anterior date, that is forward date,
एज ही में डीम फिट वेयर। तो प्रॉपर ऑफिसर इन सिचुएशंस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। पहला है कि जो रजिस्ट्री आपने करवाया था रजिस्ट्रेशन, वहां पे आपने कोई प्रोविजंस का कंट्रावेंशन किया है। द रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हैज कंट्रावेंट इन एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर। दूसरा है सेक्शन 8 में अगर आप रजिस्टर्ड हैं, जो कंपोजिशन स्कीम के लिए एप्लीकेबल है, अगर आप सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड हैं और आपने कंजिक्यूटिव 3 टैक्स पीरियड्स के रिटर्न्स नहीं भरे, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। या फिर क्लॉज बी में जो पर्सन मेंशन है, यानी सेक्शन 8 के अलावा के जो पर्सन है, उन्होंने कंटिन्यूसली 6 मंथ्स तक के रिटर्न नहीं भरे, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। और लास्ट है कि जहां आप शेड्यूल 3 में कवर्ड नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 19 वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया, और वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेने के 6 महीने तक आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो ये 4 सिचुएशंस हैं जहां पे प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। पहला, आपने प्रोविजंस को कंट्रावेन किया एक्ट के या रूल्स के। दूसरा, कि आप सेक्शन 8 में यानी कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हैं और आपने 3 कंसिक्यूटिव टैक्स पीरियड्स के लिए रिटर्न नहीं भरे। तीसरा, अगर आप अदरवाइज रजिस्टर्ड हैं, दैट इज रेगुलर कोर्स में अगर आप रजिस्टर्ड हैं और आपने 6 महीने तक रिटर्न्स नहीं भरे। एंड चौथा, कि आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है और रजिस्ट्रेशन लेने के 6 महीने तक आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, तो प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। सबसेक्शन 3 प्रोवाइड करता है कि जहां पे आपने रजिस्ट्रेशन फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट से लिया था, देन द प्रॉपर ऑफिसर में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो आपने जिस दिन एप्लीकेशन किया था या जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, उस दिन से आपका कैंसिलेशन हो सकता है रजिस्ट्रेशन का। तो सबसेक्शन 3 प्रोवाइड्स फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स के केस में प्रॉपर ऑफिसर हैज द पावर टू कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन विद द रेट्रोस्पेक्टिव डेट। अगेन सबसेक्शन 4 में वही प्रोविजन है कि अगर कोई भी कैंसिलेशन उसको करना है, देन ही विल हैव टू इशू अ शो कॉज नोटिस एंड प्रोवाइड यू एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सबसेक्शन 5 प्रोवाइड करता है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने से पहले की जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटीज है वो एज इट इज रहेंगी, उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, एंड यू विल हैव टू पे दोज लायबिलिटीज। एंड सबसेक्शन 6 प्रोवाइड्स कि अगर सीजीएसटी एक्ट में अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो एसजीएसटी में बाय डिफॉल्ट माना जाएगा, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। So my dear friends, subsection 7 and 8 is also there. So I'm not touching upon that because that relates to the input tax credit and the credit on capital. So let us now sum up again of cancellation of registration. आप खुद अपनी इच्छा से cancellation करा सकते हैं या फिर ऑफिसर कैंसिल कर सकता है। खुद करना है सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल होगा, जहाँ पे बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, या आप शेड्यूल 3 में से अभी निकल गए हो, तो आपका खुद आप कैंसिल करा सकते हैं, या डेथ हो गई। प्रॉपर ऑफिसर 4 सिचुएशन में कैंसिल कर सकता है। नंबर, आपने कोई प्रोविजंस का कंट्रावेंशन किया, या आपने कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लिया और 3 टैक्स पीरियड्स तक के लिए रिटर्न नहीं भरा, या आप रेगुलर कोर्स में रजिस्ट्रेशन लिया और 6 रिटर्न्स नहीं भरे आपने, या फिर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया और 6 महीने तक बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। सबसेक्शन 3 बोलता है कि अगर आपने फ्रॉड से या मिसरिप्रेजेंटेशन से या सप्रेशन ऑफ फैक्ट के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लिया था, तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर सकता है फ्रॉम द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। स्टार्टिंग की डेट से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। इन दैट अगेन यू नीड टू रिमेंबर सबसेक्शन 4 कि कोई भी ऐसा कैंसिलेशन करने से पहले आपको शो कॉज नोटिस देना और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना कंपलसरी है। सबसेक्शन 5 प्रोवाइड करता है कि जो अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो उस दिन तक की सारी लायबिलिटीज तो आपको भरनी ही पड़ेंगी, वो it will stand as it is. And subsection 6 provides कि अगर आपका एक एक्ट में रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, तो दूसरे एक्ट में ऑटोमेटिकली कैंसिल माना जाएगा। Now let us touch upon the last section of chapter 6 of the Model GST Act, which relates to revocation of cancellation of registration. जैसे हमने देखा कि section 21 में there can be cancellation of registration either suo motu by the assessee himself or by the department. Now एक बार आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाता है, तो वो रिवोक करने के लिए भी प्रोविजंस दिए गए हैं स्टैट्यूट में।
any person whose registration is cancelled under section 21 of the act, then he may apply for revocation of such cancellation within 30 days from the date of such cancellation. अगर प्रॉपर ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है वो 4 रीजंस की वजह से, तो आप उसकी रिवोकेशन की एप्लीकेशन डाल सकते हैं 30 दिन के अंदर. जिस दिन उसने कैंसिल किया उस दिन के 30 दिन के अंदर आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं. प्रॉपर ऑफिसर में in the manner and within such period as may be prescribed in this behalf by way of an order either revoke cancellation of the registration or reject the application for revocation. एक मैनर और टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब की जाएगी जिसके अंदर प्रॉपर ऑफिसर या तो आपकी रिवोकेशन की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा या फिर वो रिजेक्ट कर देगा. अगेन यू नीड टू रिमेंबर सबसेक्शन 3 इज एप्लीकेबल. अगर उसको रिजेक्ट करना है तो आपको शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा. एंड लास्ट कि अगर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन का जो एप्लीकेशन है वो एक एक्ट में अप्लाई एक्सेप्ट हो गया तो इट विल बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड इन द अदर एक्ट ऑल्सो. अगर SGST में वो रिवोकेशन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो CGST में भी अप्लाइड है कि वो एक्सेप्टेड हो गई. तो ये सेक्शन 22 के प्रोविजंस है रिवोकेशन से रिलेटेड कि जैसे ही आपका कैंसिलेशन हुआ 30 दिन के अंदर आप रिवोकेशन की एप्लीकेशन डाल सकते हैं. प्रॉपर ऑफिसर देखेगा, अगर उसको लगता है कि उसको अप्रूव कर देना चाहिए देन इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड एंड विद इन द टाइम लिमिट दैट इज प्रिस्क्राइब्ड वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा या रिजेक्ट करेगा. रिजेक्ट करने से पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बाय वे ऑफ शो कॉज देना पड़ेगा. और एक एक्ट में अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो दूसरे एक्ट में बाय डिफॉल्ट वो एक्सेप्टेड माना जाएगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव कवर्ड चैप्टर 6 ऑफ मॉडल GST लॉ which was from section 19 to section 22. It covered 5 sections, that is 19, 19A, 20, 21 and 22. So now it is the time to move towards schedule 3 to the model GST law or prescribed under the model GST law. So before discussing schedule 3, so now friends, let us proceed further. And after chapter 6 of the model GST law, let us see the provisions under schedule 3 of the model GST law. As we discussed earlier, that schedule 2 provides about the liability to be registered. It incorporates all those persons who are liable to be registered under the GST. So let me give you a brief about what schedule 3 prescribes. Now before proceeding towards schedule 3, I would like to remind you about subsection 1 of section 19. आप याद करें सर, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19 प्रोवाइड करता था कि जो लोग शेड्यूल 3 में रजिस्टर होने के लिए लायबल हैं उनको एप्लीकेशन करना पड़ेगा विद इन 30 days from the date on which they are becoming liable to get themselves registered. तो साहब शेड्यूल 3 में कौन कौन से पर्सन्स हैं जो लायबल है रजिस्टर में. तो पॉइंट नंबर 1 ऑफ शेड्यूल 3 वो प्रोवाइड करता है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन 9 lakhs rupees, then you are not supposed to get registration under GST. But if it exceeds 9 lakhs, you will have to take registration under GST. And for the state of northeastern side, that is northeastern states, including Sikkim, the limit of 9 lakhs becomes 4 lakhs. तो साहब इन शॉर्ट ये है कि एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका 9 लाख तक है तो रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है. 9 लाख एक्सीड करता है तो रजिस्ट्रेशन लेना है. और अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लोकेटेड हैं इंक्लूडिंग सिक्किम तो 4 लाख आपका अगर टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस करता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. अब सब यहां समझने की चीज ये कि व्हाट डज द टर्म एग्रीगेट टर्नओवर मींस. सो द डेफिनेशन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2 of aggregate turnover is very harsh definition. It provides aggregate turnover means taxable turnover
नॉन टैक्सेबल टर्नओवर, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो साहब अगर आपका टर्नओवर 9 लाख जब डिटरमाइन करना है तो उसके अंदर आपको अपना एग्जेम्प्टेड टर्नओवर, अपने एक्सपोर्ट का टर्नओवर, आपका नॉन टैक्सेबल टर्नओवर प्लस टैक्सेबल टर्नओवर, ये सब मिला के अगर 9 लाख से नीचे है इन अ ईयर फॉर अ पैन नंबर अक्रॉस इंडिया बिजनेस, तो आप एग्जेम्प्टेड है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो टू माई अंडरस्टैंडिंग आई कैन से दैट ऑलमोस्ट एवरीवन इज गोइंग टू बी कवर्ड and they would be liable for taking registration under GST. Now moving further, इसमें केवल एक एग्जेम्पशन दी गई है जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। वो एग्जेम्पशन है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इज सोलली कंप्राइजिंग ऑफ अ टर्नओवर विच इज नॉट टैक्सेबल, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर आपका एग्जेम्प्टेड टर्नओवर 10 लाख है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका एग्जेम्प्टेड टर्नओवर 8,99,999 है और 2 रुपये आपका टैक्सेबल टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सर, बिकॉज इट एक्सीड्स 9 lakhs। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 ये बोलता है कि एवरी पर्सन हु ऑन द डे इमीडिएटली प्रोसीडिंग द अपॉइंटेड डे को भी डिफाइन किया है जिस दिन सेक्शन 1 या कोई भी सेक्शन इस एक्ट का एप्लीकेबल किया जाएगा, जीएसटी एक्ट का, वो अपॉइंटेड डे होगा। सो एवरी पर्सन हु ऑन द डे इमीडिएटली प्रोसीडिंग द अपॉइंटेड डे इज रजिस्टर्ड और होल्ड अ लाइसेंस अंडर एनी अर्लियर लॉ शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम द अपॉइंटेड डे। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 में कि जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जो प्रोवाइजो था अगर आपको याद हो, तो जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन नहीं करना पड़ेगा। उसी रिगार्ड्स में बोल रहा है कि जो लोग ऑलरेडी लाइसेंस होल्ड करते हैं या रजिस्ट्रेशन होल्ड करते हैं किसी पुराने लॉ में, तो उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन नहीं करना। जिस दिन अपॉइंटेड डे होगा यानी जिस दिन ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, दे विल बी प्रिज्यूम्ड दैट दे आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, they will be liable for being registered and they will be presumed that they are registered। वो कैसे होगा? वो migration procedures are there transition provisions में, section 142 is there, और उसके अलावा प्रोसीजर्स और रूल्स जो हैं वो फ्रेम किए जाएंगे। तो साहब ये था पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 ऑफ शेड्यूल 3 सॉरी, जो ये प्रोवाइड करते थे कि अगर आपका 9 लाख का टर्नओवर है और अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है तो वहाँ पे 4 लाख का टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, वो एक्सीड कर जाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और पॉइंट नंबर 2 ये आपको बोलता था कि अगर आप पहले रजिस्टर्ड हैं तो अपॉइंटेड डे पे ऑटोमेटिकली यू विल बिकम लायबल फॉर गेटिंग योरसेल्फ रजिस्टर्ड, बट एट द सेम टाइम बिजनेस प्रोसेस भी ऐसा बोलते हैं और सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19 के प्रोविजो भी ऐसे बोलते था कि automatically you will be granted registration, you will not be required for application of any fresh registration. Now paragraph 3 point number 3 and point number 4 जो है वो रिलेट करता है कि अगर आप सक्सेशन में कोई बिजनेस ट्रांसफर होता है तो जो सक्सेसर है, जो ट्रांसफरी है या सक्सेसर, वो लायबल रहेगा रजिस्टर कराने के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर और सक्सेशन। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 4 इज रिलेटेड टू अमलगमेशन, तो उसको भी रजिस्टर कराना पड़ेगा विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इश्यू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन गिविंग इफेक्ट टू सच ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, कि वो अमलगमेशन का जिस दिन ऑर्डर आएगा तब आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यहां तक तो ठीक है साहब। पॉइंट नंबर 1 9 लाख 4 लाख, पॉइंट नंबर 2 एग्जिस्टिंग आप हैं तो आप अपॉइंटेड डे पे लायबल हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। पॉइंट नंबर 3 अगर सक्सेशन हो तो, पॉइंट नंबर 4 अगर अमलगमेशन हो। अब सर पॉइंट नंबर 5 ऐसा है कि जहां पे इवन इफ यू डू नॉट क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट बट देन ऑल्सो यू विल बी रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन।
तो ऐसे 11% डिफाइन किए गए हैं .5 ऑफ शेड्यूल 3 में, जहाँ पे इवन इफ यू डू नॉट हैव द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 9 lakhs, you will be required to take registration under the GST law. पहला है any person who is making interstate supply, irrespective of the threshold, he will be supposed to take registration. दूसरा है casual taxable person, irrespective of the turnover, he is supposed to take the registration. Casual taxable person, sir please try to remember, सेक्शन 19A में उसका रजिस्ट्रेशन होता था, जो हमने डिस्कस किया था, 90 days के लिए रजिस्ट्रेशन मिलता है. द सेम पर्सन, he will have to take registration as soon as he supply for even 1 rupee. Then the persons who are supposed to pay under reverse charge, irrespective of the turnover, they will have to take the registration. Then a non-resident taxable person, again section 19A, वो भी irrespective of the tax threshold limit, that is turnover आपका कितना है. Then persons who are required to deduct tax under section 37, जिसको TDS काटना है, उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सर. Then sixth है person who supply goods or services on behalf of other registered taxable person, whether as an agent or otherwise, irrespective of the threshold specified under paragraph 1. तो सर पार्ट 1 में जब ओवरव्यू we were discussing, at that point of time we have discussed the definition of supply, and in case of supply there was a clause of section 3 to the CGST SGST Act which was providing that in case there is a transaction between agent and principal, both will be treated as a separate person. तो ये उसी रिगार्ड्स में बोल रहा है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो सप्लाई करता है गुड्स और सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ अदर रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे वो एज एन एजेंट कर रहा है या किसी और रूप में कर रहा है, तो ही विल हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन irrespective of the threshold limit. Then input service distributor, he will have to take registration. Then persons who supply goods or services other than branded services through electronic commerce operator, जो other than branded services को सप्लाई कर रहे हैं पर्सन्स, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहे हैं, तो irrespective of the threshold they will have to take the registration. Then next is every electronic commerce operator irrespective of the threshold, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. एन एग्रीगेटर हु सप्लाई सर्विसेज अंडर हिज ब्रांड नेम और स्ट्रेट नेम irrespective of the threshold limit. एंड इसके अलावा सर लास्ट कंक्लूडिंग जो 11th पॉइंट है वो ये बोलता है सच अदर पर्सन और क्लासेस ऑफ पर्सन एज में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल. मीन्स ये 10 लोगों को तो उन्होंने इंक्लूड किया है, इसके अलावा भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकते हैं कि और कौन से लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन कंपल्सरीली जीएसटी में लेना पड़ेगा. तो लेट अस रिपीट वंस अगेन. पॉइंट नंबर 5 विच प्रोवाइड्स 11 क्लॉजेस, उसमें फर्स्ट है इंटरस्टेट सप्लाई, सेकेंड है कैजुअल टैक्सेबल इनकम, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स, थर्ड इज रिवर्स चार्ज में जो लोगों को पेमेंट करना है, फोर्थ इज नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, फिफ्थ इज पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, सिक्स्थ इज person who supply goods on behalf of other person, seventh is input service distributor, eighth is persons who supply goods other than branded goods through an electronic commerce operator, then ninth is every electronic commerce operator, 10th is an aggregator who supplies under his brand name or trade name, and last is any other person as notified by the central government or state government on the recommendation made by the council can also be made liable for taking registration as per schedule 3 of the model GST law. Now my dear friends, we have discussed chapter 6 section 19 to 22 schedule 3 which prescribes about the liability to be registered. Now at last, without taking much of your time, I would like to touch upon few final points which were reported by the Joint Committee on business process of GST on GST registration. So some of the final points we will touch upon, and then we will end up this part of discussion for the day. So now friends, we are at the end of part 2 of our knowledge series on model GST law.
Now we have to discuss the report of joint committee on business process of GST relating to registration. Rest of the things we have discussed under section 19, rather chapter 6 of the model GST law. So I will not touch upon all those aspects again. The only thing which is left is what will be the GSTIN, that is GST identification number. So it is proposed that the GSTIN will be of 15 digits. 15 डिजिट का नंबर आपको मिलेगा सर. 15 डिजिट सर कैसे होंगे? फर्स्ट 2 डिजिट्स विल रिप्रेजेंट द स्टेट. से फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का कोड 27 है तो फर्स्ट 2 डिजिट्स विल बी 27 इफ द रजिस्ट्रेशन इज टेकन इन महाराष्ट्र. देन नेक्स्ट 10 विल बी पैन नंबर. तो 12 डिजिट हो गए सर. 13th डिजिट विल रिप्रेजेंट the number of verticals, that is the entity code. Like say for example आपके 5 verticals हैं, so there will be 5. So as per the business process report, the maximum number which is allowed for business verticals to be registered is from 1 to 9 and A to Z. It is an alphanumeric number from 1 to 9 and A to Z. So if you see, in all there can be 35 verticals which can be registered. 1 to 9 no, और A to Z 26. तो 9 plus 26 35. तो जो 13th डिजिट है वहां पे वो आएगा 1 to 9 या A to Z. 14th जो डिजिट है वो उन्होंने भी ब्लैंक छोड़ दिया है फ्यूचर यूज के लिए. एंड 15th डिजिट चेक डिजिट है. तो ये GSTIN जो आपको नंबर मिलेगा उस नंबर का कंपोजिशन है. अब सर लास्ट के 2 मिनट लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रोसेस विच इज मेंशन्ड इन द रिपोर्ट. सो व्हाट दे आर टेलिंग इज देयर विल बी 2 टाइप ऑफ रजिस्ट्रेंट्स. एक वो होगा जो एग्जिस्टिंग है, अर्लियर लॉ में कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है, और दूसरा वो होगा जो इसको नया रजिस्ट्रेशन लेना है. जो अभी क्योंकि अभी तो 1.5 करोड़ तक की मैन्युफैक्चरिंग, 10 लाख तक की सर्विस एग्जेम्प्टेड है. अभी तो मैन्युफैक्चरिंग भी 10 लाख ही हो जाएगी, तो बहुत सारे लोग उसमें कवर हो जाने वाले हैं जो जीएसटी में आएंगे. तो नए रजिस्ट्रेंट्स और पुराने के लिए सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजर याद करिए सर. उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कराना. इसका मतलब सेक्शन 142 में माइग्रेशन का प्रोसेस दिया है. जो भी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेंट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है, दे विल बी ऑटोमेटिकली माइग्रेटेड ऑन द न्यू सिस्टम जीएसटी पोर्टल. उनको एक मेल चला जाएगा. उसके बाद जो रिमेनिंग जो डेटा है जो मिसिंग रहेगा वो उनको फिल करना है विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 6 months. फॉर 6 months दे विल बी अलॉटेड अ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर. और जो नए लोग हैं उनको जीएसटी पोर्टल पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है. सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने हैं. अगर डिजिटल सिग्नेचर से कर देते हैं तो उनको डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है. इफ दे आर नॉट यूजिंग द डिजिटल सिग्नेचर देन विद इन 30 days दे नीड टू सेंड द डॉक्यूमेंट्स. अगर 30 days में डॉक्यूमेंट्स वहां नहीं मिलते हैं फेलिसिटेशन सेंटर को या प्रोसेसिंग सेंटर को, आई वुड से, देन दे कैन इश्यू अ लेटर एंड विद इन नेक्स्ट 30 days यू नीड टू सबमिट. अगर फिर भी आप नहीं करते हैं देन दे मे प्रोसीड फॉर कैंसिलेशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन. ये प्रोसेस है सर. अभी नाउ वंस यू हैव अप्लाइड, अभी हम नए लोगों की बात कर रहे हैं. नए लोगों ने आपने अप्लाई कर दिया, 30 दिन के अंदर आपने डॉक्यूमेंट भी भेज दिए या डिजिटल सिग्नेचर से अपलोड कर दिया, तो ये प्रोसेस ऐसा बोलता है कि ऑटोमेटिकली एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज में आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा. और नहीं अप्रूव होता तो आपके पास अगर कोई कम्युनिकेशन है तो आ जाएगा कि ये डेफिशिएंसी है आपके एप्लीकेशन में. विद इन अ फिक्स ड्यूरेशन यू हैव टू सॉल्व दैट डेफिशिएंसी. और वो डेफिशिएंसी जैसे ही आप सॉल्व करते हैं उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा. रिजेक्ट करना हो तो एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दे विल हैव टू इश्यू अ शो कॉज नोटिस एंड गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू यू. अब सर जो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेंट की बात करें तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे. जैसे हमने बोला वो नए प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, उनको मेल चला जाएगा. जो रिमेनिंग उनका डेटा है जो नहीं है उनके पास,
दैट डेटा विल हैव टू बी सबमिटेड विद इन अ ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ्स. वो सबमिट करेंगे तो उनको फाइनल रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा. सो साहब अभी एक चीज़ बहुत क्लियर है कि आप नए रेस्टोरेंट हो या पुराने रेस्टोरेंट हो, आपने एक बार एप्लीकेशन सबमिट कर दिया तो उसके बाद एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज जो रूल्स बताएगा उसमें उनको प्रोसेस करना जरूरी है, चाहे वो एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट कर दें. रिजेक्ट करने से पहले शोकॉज और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा. एक्सेप्ट नहीं करते और कोई डेफिशिएंसी का कम्युनिकेशन भी नहीं करते तो इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट योर एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड. अब केवल इतना लास्ट में समझ लेते हैं कि अगर एक एक्ट में आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया तो दूसरे में भी अप्रूव माना जाएगा, एक में रिजेक्ट हो गया तो दूसरे में भी रिजेक्ट माना जाएगा. With this, my dear friends, I think I have covered registration under the model GST law. There may be some of the points which I have not covered, which will be covered at a later parts, like in the case of composition dealer, how the composition dealer has to take registration. Once he is registered as a composition dealer, whether he can be converted into a regular dealer, or a regular dealer can be converted as a composition dealer or not. Those aspects I have not touched upon in this part of registration discussion, but in the coming parts that will certainly be taken care of. Once again, I am thankful to each of the listeners, each of the participants for giving me a patience hearing, and I promise that part 3 of the knowledge series will be released within next 3 days, and it will be on the very important topic pertaining to time and place of supply under GST. Thank you very much.